Hello, my dear learners. This is your trainer Aishwarya Seth, and I welcome you all to this revolutionary YouTube platform Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, which is the India's first YouTube channel in which each and every Indian student can get 100% free complete coachings of various competitive exams all over India. Here we are providing you the complete coachings of the national exams just like UGC, CTET, PTET, KVS, Master Cadre, Management Trainees, ETT, NTT, BEd, MEd, etc. and much more. So this is the India's first social educational channel where each and every student of India can get free of cost education and make their dreams come true and will be able to build their careers in their respective streams or fields. So I started this channel on the 1st April 2020. Until now I taught you the full-fledged topics of research aptitude and teaching aptitude of UGC paper 1. And as you all know that 14 to 15 minimum questions in totality will come from these two topics. And if you watched all my videos of these two topics, research aptitude and teaching aptitude, then make sure this thing that your approximately 30 marks are confirmed. So this is the real power of this channel. So now currently I am teaching you the complete topic of communication of UGC paper 1 in a chronological order in which I covered meaning, features and process, 7 C's of communication along with the different types of communication and barriers to communication and respective ways to overcoming these barriers. So if you missed any video of any topic, then please do watch because I am teaching you each and every topic in a chronological order, which is really very important. So today in this video I will teach you a very important topic of communication, that is classroom communication. You are seeing on your screen classroom communication. It is complete topic under the communication topic of UGC paper 1, which is the 4th unit of UGC paper 1. So watch this video very carefully because 1 or 2 questions from this topic will definitely come in the UGC exam. So let's start with the presentation. So क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन उससे पहले एक थॉट है जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्लासरूम में टीचर का क्या रोल होता है. एक थॉट है विलियम अर्थर ने दिया है, एक मीडियोकर टीचर जो है वो सिर्फ बताता है, इट टेल्स, ठीक है. द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अगर उससे अच्छा टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा, उससे भी एक सुपीरियर टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा. एंड द ग्रेट टीचर, जो रियल टीचर है वो सिखाएगा भी और लर्निंग के लिए इंस्पायर भी करेगा. तो ये थॉट जो है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बताया, यू शुड बिकम अ आइडियल टीचर, ठीक है जी, ग्रेट टीचर विच एवरी टाइम इंस्पायर्स दी स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हम एक थॉट लेके चलते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है जी. अब टीचिंग इज़ अ सोशल एक्टिविटी, एवरीबडी नोज, वेयर बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स इंटरेक्ट इन द क्लासरूम, ठीक है जी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिगरिंग आउट द लर्निंग एक्टिविटीज़ कि क्या टीचिंग करवा के जो टीचर है वो लर्निंग हैपन हो रही है, और अगर हैपन हो रही है तो किस लेवल की हो रही है, जितना वो कराने की कोशिश कर रही है उतनी लर्निंग हैपन हो रही है कि नहीं. तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है जो एक क्लासरूम में होती है. एंड क्लासरूम इज़ अ प्लेस वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्पेंड बोथ many hours with communicating each other, and teachers share their knowledge, experience and information. जो भी टीचर को है उसको पता है, ठीक है, जो उसने टीचिंग करना है वो सब कुछ उसके जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है, और स्टूडेंट क्या करता है, गेन करता है नॉलेज, और वो अल्टीमेटली क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है जी. सो एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो कम्युनिकेशन हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में उसको बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन. सो ये बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर वेल रन कम्युनिकेशन, वेल रन क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है जी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हर जगह हैपन हो ही जाती है, लेकिन अगर क्लासरूम में इफेक्टिवली ना हो, ठीक है जी, कम्युनिकेशन तो हो ही जाती है क्लासरूम में, लेकिन किसी क्लासरूम में इफेक्टिवली ना हो तो वो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल बेसलेस बन जाती है, ठीक है. उसके बाद क्या है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट,
ठीक है जी, बिकॉज इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो यहाँ पे एक और मोर इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या है, ये टू वे होती है, और वैसे भी हर कम्युनिकेशन टू वे ही होती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, वन वे तो वैसे भी इनकम्प्लीट होती है, और अगर ये टू वे है तो टीचर अगर जो समझा रहा है उसको पूरा पूरा ये एक डिटर्मिनेशन के साथ समझाना चाहिए, और ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जब समझाने के बाद वो पूछे कि आपको समझ आई है, ठीक है जी, कैसे क्या चीज़ समझ आई, क्या नहीं रह गई, या कोई डाउट है तो क्लियर कर ले। तो ये क्या है, साथ साथ में क्या वो ले रहा है, वो फीडबैक या रिस्पॉन्स ले रहा है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम जब टीचिंग हो गई, टीचिंग के साथ ही उसका जो है रिस्पॉन्स भी वो जनरेट कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, एंड इट शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो। जो क्लासरूम लर्निंग इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को रिस्पेक्ट दे प्रॉपर, और जो टीचर है वो स्टूडेंट को प्रॉपर जो है वो अच्छे से ट्रीट करे, रूडली बात ना करे, इरिटेट ना हो कि बार बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार जो है क्वेरीज आ रही हैं, कितनी बार समझाऊं, एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोडियल इन्वायरमेंट, एक कंजीनियल इन्वायरमेंट जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का होना चाहिए। और आजकल की डेट में टीचर सिर्फ टीचर का काम नहीं करता, एक मेंटर का, एक काउंसलर का, एक गाइड का, एक इंस्पायरर का, और ये सारे काम जो है ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि सिर्फ टीच करना नहीं है, टीच करने के साथ साथ जो है वो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन मींस जो है आपके स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर जो है सिटीजन्स बनाए, गुड सिटीजन्स बनाए फॉर द नेशनल डेवलपमेंट अल्टीमेट गोल के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है और साथ में क्या है, गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन मेक्स द लर्निंग वेरी वेरी ईजी। ठीक है, कम्युनिकेशन तो होनी है, अगर इफेक्टिव वे से होएगी क्लासरूम में तो लर्निंग जो है वो बहुत ईजियर हो जाएगी। ठीक है जी, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स एंड एक्सपैंड देयर लर्निंग हॉरिजॉन्स। ठीक है जी, लर्निंग एक्सपैंड होएगी, इन डेप्थ लर्निंग होएगी, बहुत ही क्रिएटिव लर्निंग होगी, और उसमें क्या है, लर्निंग बहुत ही जो है इन डेप्थ और अच्छी तरह से लर्निंग के गोल्स जो है अचीव कर पाएंगे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। सो इट स्ट्रेंथन्स द कनेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो दोनों का रिलेशन भी अच्छा होगा। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है तो इट मेक्स दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर पॉजिटिव, मोर क्रिएटिव एंड मोर सूदन, कि स्मूथ कर देता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बहुत ही अच्छे से जो है वो कंडक्ट करवाता है क्लासरूम कम्युनिकेशन अच्छे से, और इमीडिएट फीडबैक हम जो है जनरेट कर सकते हैं। एंड इट क्रिएट्स द हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट विच डेवलप्स अ सेंस ऑफ इंक्लूजन अमंग द लर्नर्स। इंक्लूजन की सेंस आती है। अगर देखिए टीचर अगर डोमिनेट करे, अब क्लासरूम तो है ही, अगर टीचर हिटलर टाइप हो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, तो क्या करेगा, वो किसी को बोलने तक नहीं देगा, बस चुप कर जाओ, मुझे सुनी जाओ। लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक दैट। और अगर टीचर जो है वो बहुत बहुत ही लिबरल है, ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल है, तो उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा और क्लास में वैसे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है। अ टीचर शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड बैलेंस्ड बिटवीन अ लिबरल टीचर एंड वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो टीचर क्या है, एक ऐसा टीचर होना चाहिए कि खुद भी बोले, और खुद बोलने के साथ साथ जो है वो सेंस ऑफ इंक्लूजन जो है लर्नर्स में भी डेवलप करे, कि लर्नर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे कि क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या उनकी क्वेरीज हैं, उनको रेज करने के लिए एनकरेज करे कि येस टेल मी योर क्वेरीज, टेल मी योर डाउट्स, आई मस्ट क्लियर दैट, मैं आपकी क्वेरी जो है वो हैंडल करूंगी, आप जितनी बार मर्जी पूछो। ठीक है जी, तो ये क्या है, ये बहुत इफेक्टिव जो है वो फीचर्स होते हैं क्लासरूम के, कि मैक्सिमम फीडबैक लेना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही एक टीचिंग पैडागॉगी भी कह सकते हैं, कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और कंप्लीट एजुकेशन के लिए जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बहुत ही पर्पसिव होनी चाहिए, मींस उसका पर्पस होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड इट शुड बी प्रैग्मेटिक इन नेचर एज वेल। तो यहाँ पे हर तरह का देखिए, लर्नर्स और जो टीचर्स में वैसे तो फॉर्मल जो है वो रिलेशनशिप होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट शुड बी इनफॉर्मल ऑल्सो, बिकॉज हमेशा अगर हम सिर्फ फॉर्मल होकर बात करेंगे
तो क्या होगा, इट क्रिएट द मोनोटनस, और जो है लर्निंग एबिलिटी जो है वो सप्रेस हो जाती है लर्नर्स की। तो यहाँ पे बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है कंजीनियल इन्वायरमेंट जो है क्लासरूम सिचुएशन में होना चाहिए। आई थिंक आपने जितने ये जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने आपको एज इट इज़ पढ़ा नहीं है, लेकिन जो जो लिखा हुआ है मैंने आपको एज इट इज़ क्लियर कर दिया है, ठीक है जी, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करके, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है जी। सो इट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक वेल मैनेज क्लासरूम में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स जो है होनी चाहिए। अब देखिए, जहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन होगी और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होगा। अब स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा, ठीक है, क्लास की दीवारें तो कर नहीं सकती, ठीक है जी, कुछ और जैसे बेंचेस हैं, डेस्क्स हैं, टेबल्स हैं, वो तो कर नहीं सकते। कौन करेगा एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट? टीचर करेगा। और टीचर का साथ कौन देगा? दूसरे एंड पे लर्नर्स देंगे। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, समझ के जो है वेल मैनेज जो है क्लासरूम बनाएंगे, और एक कंजीनियल इन्वायरमेंट, एफिशिएंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो है वो आगे एक दूसरे का साथ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सिर्फ डिसिप्लिन को हम ये कहें कि डिसिप्लिन ही मेंटेन करके रखना है, कि बस जो 35 मिनट्स की या 40 मिनट्स का पीरियड है तो कोई बोले ना, सिर्फ टीचर ही बोलती रहे, तो वो हार्ड अर्नड डिसिप्लिन भी किसी काम का नहीं है। बिकॉज कई बार क्वेश्चन क्या आता है यूजीसी में और बाकी अदर एग्जाम्स में भी आता है कि क्या अगर वो क्लासरूम अच्छा है जिसमें जो है वो पार्टिसिपेशन हो और जो लर्नर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, अपनी क्वेरीज डाउट्स जो है वो टॉकिंग करके बताएं, या वो क्लासरूम अच्छा जिसमें सिर्फ टीचर पढ़ा के समझा के चला जाए और कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई भी स्पीकिंग जो है लर्नर्स के एंड से ना आए। तो आप ही बताइए कौन सा अच्छा है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला या बिल्कुल बैलेंस्ड वे में डिसिप्लिन वाला? बैलेंस्ड वे में, ऑब्वियसली बैलेंस्ड वे का मतलब है कि डिसिप्लिन भी हो और साथ में जो है जो क्वेरी है, डाउट्स हैं, जो भी आपका रिकैप्चुलेशन है, उनको कितना समझ आया, उनका रिस्पॉन्सेज है, फीडबैक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही क्लासरूम कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी खासियत है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके जो हम फीचर्स देखते हैं, फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे कोई भी काम करना। अब टीचर क्या है, अगर जो भी वो देखिए वेल प्रिपेयर होके जो क्लासरूम में जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी पढ़ाने नहीं चला जाता, ठीक है। सो अगर वेल प्रिपेयर होके गया है तो जो भी उसने टॉपिक पढ़ाना है तो उसको कितने टाइम में, 35 मिनट्स में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के साथ साथ उस टॉपिक को इन डेप्थ नॉलेज भी लेनी है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कंप्लीट कर दिया और नॉलेज लर्नर्स को हुई ना हुई उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है, उसको टाइम भी मैनेज करना है, उसको स्टूडेंट्स को भी जो है डिसिप्लिन में लेके आना है, उसने क्वेरीज भी हैंडल करनी है, उसने अपना लेक्चर भी पढ़ाना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्लासरूम की टाइम मैनेजमेंट में बहुत एक जो है अहम रोल जो है निभाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन और इफेक्टिव क्लासरूम को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इसका ये सिंपल सा मतलब आपको बताती हूँ कि वेल मैनेज क्लासरूम में अगर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट का मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है। नहीं तो अगर पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट्स को कुछ भी बोलने का, कुछ भी पूछने का, या कुछ भी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हाँ जी मैम ये समझ नहीं आया, लेकिन इससे अगर वो अपनी कोई सजेशन दे पाएँ, रिकमेंडेशन दे पाएँ कि इस टॉपिक को जैसे आपने समझाया उसमें और इम्प्रूवमेंट लेके आके हम ऐसे समझा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, तो recommendations और suggestions should always be welcomed by the teacher as well। तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, रिस्पॉन्सेज, फीडबैक, recommendations एंड suggestions फ्रॉम द स्टूडेंट। तो ये होना चाहिए। फिर क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या होता है कि हाँ जी जो जब टीचर बोले तो स्टूडेंट्स बिल्कुल शांति से सुने, जब स्टूडेंट्स डाउट लें तो टीचर उनको जो है वो सुने और उसको जो है डाउट्स क्लियर करे। तो ये क्या है, फर्म डिसिप्लिन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन की। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट लाइन में स्टूडेंट शुड बी गिवन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि हमेशा जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उनको जो है
सप्रेस ना करके उनको इंस्पायर करें कि आप हाँ जी कोई भी डाउट है तो हमें बताएं। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट से नहीं लेंगे, स्टूडेंट्स विल नेवर आस्क। स्टूडेंट्स कभी भी आपको अपने आप कभी भी आगे, क्योंकि हमेशा कई बार होता है कई स्टूडेंट्स शाई होते हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे होते हैं जो नहीं लेके आते, तो हमें उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि हाँ जी अगर आपने कोई डाउट पूछना है तो पूछो। और अगर डाउट कुछ पूछ भी लिया, अगर आपको लगा कि वो डाउट जो है वो उस कंसेप्ट के साथ नहीं भी जा रहा, फिर भी उसको हमने बैड कमेंट्स नहीं देने, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही हमेशा देनी है। तो आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। टाइप्स में क्या है, दो टाइप्स की होती है क्लासरूम कम्युनिकेशन, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल क्या है, ऑब्वियसली वर्बल जिसमें हम हमारे वर्ड्स और हमारी लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, ठीक है जी। अब वर्बल में रिटन और ऑरल दोनों तरह की कम्युनिकेशन आ गई। अगर टीचर कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, टीचर में आस्क अ स्टूडेंट टू स्टैंड अप विच इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर वो ऐसे उसको बोलते हैं कि आप जस्ट स्टैंड अप, तो क्या है, वर्ड्स के थ्रू वो ऑरल मीन्स बोल के बता रही है। अगर या फिर दूसरे एंड पे देख लीजिए, अगर टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट कर रही है और स्टूडेंट्स को बोल रही है कि आप जो मैं राइट कर रही हूँ वो लेसन लिखिए, तो वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। तो बोथ बोल के और लिख के दोनों तरह के कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स के थ्रू और लैंग्वेजेस के थ्रू आ जाती है। और नेक्स्ट क्या है, दूसरी क्या है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स और लैंग्वेज ना इन्वॉल्व हो और जहाँ पे क्या हो, जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स हो, आपके पोस्चर्स हो, जेस्चर्स हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, ठीक है जी, और आपकी आई कांटेक्ट हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर एक स्पीकर है, टीचर है, अगर वो अपना जो सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस है या अपना कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से छलकता है, एक टीचर का या एक कन्वीनर का या एक स्पीकर का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से छलकता है, उसके आई कंटेक्ट से। तो अगर वो क्लास को देख के नहीं बोल रहा, अगर स्टूडेंट्स की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोल रहा, ठीक है जी, समझा कहाँ कुछ रहा है, आंखें कहीं और जा रही हैं, नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहा, तो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक जो है वो अपने टॉपिक में क्लियर नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, कि वो जो समझा रहा है उसको खुद भी अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो एक क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि हाँ जी, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्पीकर और टीचर कैन बी चेक्ड बाय व्हाट, इट इज़ जस्ट ओनली एंड ओनली फ्रॉम, सबसे पहले आई कंटेक्ट से, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर और ये वॉइस और टोन सब बाद में आता है, सबसे पहले आई कंटेक्ट से उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम चेक कर सकते हैं। फिर क्या है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आई कांटेक्ट है, ठीक है जी, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कितना करना है स्टूडेंट और टीचर ने, हाँ जी, वॉल्यूम है, टोन है, वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, पिच हैं, आई कांटेक्ट है, एक्टिव मूवमेंट्स हैं, बॉडीली मूवमेंट्स हैं, ये सारी क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो ये दोनों तरह की कम्युनिकेशंस जो हैं वो क्लासरूम कम्युनिकेशंस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। अब एक टीचर है, वो क्लास में सिर्फ एक जगह पे खड़ा होकर, सिर्फ सेम जगह पे खड़ा होकर 40 मिनट्स अब बोले तो बहुत और लगता है, बोल भी रहा हो, क्लास में थोड़ा सा मूव भी कर रहा हो, चेक भी कर रहा हो कि स्टूडेंट्स लिख रहे हैं या उसको सुन रहे हैं कि नहीं कर, तो ये सब चीज़ें, बॉडी मूवमेंट्स और ये सारी चीज़ें, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वर्बल आपको मैंने बता दिया कि जो रिटन और ऑरल है, नॉन वर्बल क्या है, जो रिटन ऑरल नहीं है, वर्ड्स के थ्रू नहीं है, विदाउट द वर्ड्स एंड विदाउट लैंग्वेज है। तो ये दो तरह की हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या, टीचर का क्या रोल है, टीचर क्या क्या प्लान करता है। तो 4 तरह के बेसिक जो हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके यूजीसी एग्जाम में, इसको ध्यान से सुनिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ अ टीचर क्या है, डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन कैसे वो करता है, डेवलपिंग क्लासरूम कल्चर कैसे करता है, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल इन द लर्नर्स, यहाँ पे लर्नर्स है, ठीक है जी, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन द लर्नर्स। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन के ऊपर मैंने पूरा एक एलेबोरेटिव फॉर्म में बहुत ही डिटेल्ड वे में लिख दिया, लेकिन रोल ऑफ अ टीचर मैं आपको वैसे आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो कैसे करनी है, टीचर प्लान करता है सबसे पहले कि क्लास में कैसे जाना है, कितने टाइम पे जाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन कौन से मॉड्यूल से होकर पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, किस ऑर्डर में पढ़ाना है। तो ये सब पहले उसका जो रोल ऑफ अ टीचर वो प्लान करता है कि किस तरह से हमने
प्रॉपरली एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स में डेवलप करनी है। ये रोल है टीचर का। और आपको भी पता है जो टीचर है वो स्टूडेंट का हमेशा रोल मॉडल जो है वो होता है। जो उसका बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स हमेशा तकरीबन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम, चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर का सबसे बड़ा रोल है कि वो इंस्पायरर है, मेंटर है, ठीक है जी, मोटिवेटर है, वो सब गाइड है, ठीक है जी, वो सब कुछ है, उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक टीचर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को ये बोले कि बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, ठीक है, पंक्चुअल हो, रोज़ क्लास में आके पंक्चुअलिटी से बैठो, टाइम पे आया करो, बस वो कह रहा है लेकिन वो खुद नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि यू शुड बी पंक्चुअल, बट वो खुद जो है वो हर रोज़ या कॉन्सेक्टिव डेज में या फ्रीक्वेंटली वो है वो 5 मिनट लेट आ रहा है, या किसी मतलब लेट आ रहा है, उसकी खुद की लेट कमिंग है। तो क्या उसकी जो उसने बोला, क्या स्टूडेंट्स उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि जो टीचर करता है वही, क्योंकि वो खुद कहेंगे कि सर आप तो कुछ करते नहीं हो, आप तो खुद पंक्चुअल नहीं हो। कई बार स्टूडेंट्स बोल भी देते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन में जब स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और अगर छोटे भी हैं तो वो माइंड में तो ये सोचते हैं कि जो टीचर बोल रहा है खुद तो वो फॉलो नहीं कर रहा और हमें फॉलो करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ही स्पेसिफिक है, वो रोल मॉडल होता है। उसको स्टूडेंट्स का लेवल चेक करना होता है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना होता है स्टूडेंट्स का। रोल मॉडल और मेंटर होता है। और वो स्टूडेंट का जो है एक फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट्स के करियर का फाउंडर होता है। तो उसको एक रोल मॉडल की तरह रहना चाहिए, ठीक है जी। रोट लर्निंग नहीं करानी चाहिए, प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी से इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर, क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। यही क्या है, ये प्रॉपर रोल ऑफ टीचर है आज की डेट में, ठीक है जी। और पॉजिटिव, मैंने आपको एक लाइन पहले भी बोली, इट शुड बी, जो टीचर है ही शुड गिव द पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब कि जब भी स्टूडेंट कुछ बोले, कुछ क्वेरी अराइज करे, तो आपने उसको चुप करके नहीं बिठाना, उसको बोलना है येस योर इंक्वायरी इज़ वेलकम, मैं आपको अभी बताता हूँ उसका क्या आंसर है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, अगर कुछ वो बोल भी दे तो उसको नेगेटिव ना करें, डिस्करेज ना करें, ठीक है जी। तो ये रोल है टीचर का। दूसरा क्या है उसका कि डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन। ये सिंपल सी बात है, हम सब टीचर्स हैं, आप जो सुन रहे हैं, कई ऐसे टीचर्स होते हैं और कई इवन कि सबको पता है कि जो भी हम जैसे जो हमने पढ़ाना है उसका वो कंटेंट हमें पता होना चाहिए, और उस पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव से, कौन से चैप्टर, कौन से एम से पढ़ा रहे हैं, कि जो हम लर्निंग करवा रहे हैं किस एम से करवा रहे हैं, और स्टूडेंट को जो करवा रहे हैं वो अच्छे से जो मैसेज या कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं वो प्रॉपर डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो प्रेजेंटेशन है, जो टीचर अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जो भी सिखाता है, इट शुड बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, और बहुत ही अच्छे मैनर से, चाहे वो ड्राइंग करके, चाहे ग्राफ्स बना के, जहाँ पे मॉडल्स की ज़रूरत है, जहाँ पे स्लाइड्स की ज़रूरत है, जहाँ पे किसी चीज़ की भी, जो भी पिक्चर्स की ज़रूरत है, ग्राफ्स की है, मैप्स की है, स्लाइड्स की है, किसी भी, और इवन किसी भी टीचिंग एड की है, वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए वो ज़रूर यूज़ करे, और जो है अपना लेक्चर डिज़ाइन करे एज़ पर द इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स एंड एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टीचर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग क्लासरूम कल्चर। अब थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर की? देखिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं टीचर की करा रही हूँ। क्लासरूम कल्चर में क्या है कि एक अच्छा हेल्दी क्लासरूम कल्चर डेवलप करें, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये पता हो कि कितना लेवल तक हमने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वी शुड बी इन डिसिप्लिन। जब टीचर पढ़ा रहा है उनको पहले ही पता होना चाहिए, टीचर की एक कमांड होनी चाहिए, ठीक है जी। टीचर की एक जो है वो क्लासरूम सब, क्योंकि टीचर का नेचर और उसका जो पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है जी, वो सारा स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि ये टीचर जो है वो ऐसे पढ़ाता है, उसको ये पसंद है, उसकी ये लाइकिंग्स हैं, ये डिसलाइकिंग्स हैं, क्लास में उसको शोर नहीं पसंद है, ठीक है, जब वो पढ़ा रहा है वो जो है वो नॉइज़ पसंद नहीं करता। ये क्या है, क्लासरूम कल्चर। ये भी क्या है, अच्छे अच्छे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लाकर क्लासरूम कल्चर जो है वो टीचर ने ही बिल्डअप करना होता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को अपना इंस्पायरर मान सके, अपना रोल मॉडल मान सकें, कल्चर अच्छा डेवलप कर सकें, ठीक है जी।
और डोमिनेट ना कर पाए। और ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ लर्नर्स शाई होते हैं स्टूडेंट क्लास में, कुछ लर्नर्स बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस जो है हाइपर एक्टिव पूछते रहते हैं बार 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 बार, और शाई जो है चाहे उसके माइंड में भी क्वेश्चन है लेकिन वो पूछ नहीं पाता। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहाँ पे कोई भी शाइनेस और कोई भी हेजिटेशन फील ना करे किसी भी तरह का रिस्पॉन्स या डाउट देने के लिए टीचर को, ठीक है। और टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, लर्नर्स को इंस्पायर करना चाहिए कि वो फ्रीक्वेंटली अपने जो क्वेश्चंस हैं वो जो भी हैं वो अच्छे से कर पाएँ, और ये क्लासरूम कल्चर अच्छा सा डेवलप कर पाएँ जहाँ पे नॉइस ना हो, इनडिसिप्लिन ना हो, लेकिन इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हैपन हो रहा हो। और कम्युनिकेशन जो है इट शुड बी डेमोक्रेटिक ऑल्सो। और यहाँ पे क्या है कि बहुत शाउटिंग और लाउडली स्पीकिंग और ये सब चीज़ें डिस्करेज करनी चाहिए, और अच्छे से हेल्दी इन्वायरमेंट को, क्लासरूम कल्चर को एनकरेज करना चाहिए। तो ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल इन द लर्नर्स। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि लर्नर्स को अब ठीक है, टीचर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हो ही सकती है, लेकिन लर्नर्स का जो स्टेज फेयर है, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी टीचर्स को ही जो है वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है जी। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं कुछ बोल रहा, या उसको हेजिटेशन है, या वो अपनी क्वेरी नहीं बता रहा, या उसको कोई डाउट रह गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, कम्युनिकेशन कैसे करनी है क्लासरूम में, इवन कि टीचर के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है, और अपने पेयर ग्रुप्स के साथ, अपने क्लास कोलीग्स के साथ कैसे बात करनी है, क्लासमेट्स के साथ कैसे बात करनी है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, टीचर के साथ कैसे बात करनी इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो टीचर लर्नर्स को भी सिखाएगा, इनकरेज करेगा, ठीक है जी। और ऑलवेज आपके जो ओपिनियन है, जो व्यूज़ हैं, जो डाउट्स हैं, वो आप रेस कर सकते हैं टीचर के सामने। ये भी एक जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है लर्नर्स में डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चार तरह की जो है मैंने आपको बताई कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से क्लासरूम डिज़ाइन करना है, क्लासरूम कम्युनिकेशन को जो है एनहांस करना है। अब क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे लर्नर्स की बारी आ गई, क्योंकि लर्नर्स के लिए हमने क्या करना है, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए क्लास में, दूसरा एम्पैथी होनी चाहिए, तीसरा एप्रिसिएशन एंड पेशेंस। अब देखिए, सबसे पहले पार्टिसिपेटरी अप्रोच, इसमें भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टूडेंट्स को हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उनके रिस्पॉन्सेज हैं, उनको वेलकम करना चाहिए, ठीक है जी। उनको क्या करना चाहिए, क्वेश्चनिंग को जो है, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं माइंड में, उनको लेना चाहिए। टीम स्पिरिट डेवलप करें, ठीक है जी, स्टूडेंट्स के अंदर टीम स्पिरिट्स डेवलप करें, शेयरिंग हैबिट डेवलप करें, स्टूडेंट्स को क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका दें, ठीक है जी। और वहाँ अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस कोई इस तरह से कोई जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर कुछ किसी और ही वे में उसने दे दिया, तो उसको ऐसे बैड कमेंट से डिस्करेज ना करें, उसको भी बोले चलो कोई बात नहीं, इस बार आपने गलत दे दिया आंसर, अगली बार आप जो है सोच समझ के देना, अच्छा आंसर आप दे सकोगे। तो इस तरह से हमने हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करने हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखने के लिए स्टूडेंट्स की। कभी भी जैसे ही आपने नेगेटिव वर्ड बोला एज ए टीचर, तो कभी भी स्टूडेंट जो है दोबारा उठ करके वो आपके सामने हेजिटेट ही करेगा, दोबारा कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक नेगेटिव कमेंट जो है स्टूडेंट को सप्रेस कर सकता है। तो अगर स्टूडेंट किसी तरह का भी आपको कुछ पूछ रहा है, चाहे वो किसी थोड़ा कम लेवल पे पूछ रहा है या अच्छा लेवल पे पूछ रहा है, सबको जो है आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए लर्निंग के लिए। नेक्स्ट का है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ वननेस, कि एक जो क्लास है उसमें हर लर्नर जो है वो सेम लेवल का है। हम ये देखिए, हम अब टीचर है, अगर टीचर ही उसमें डिस्क्रिमिनेशन करेगी कि हाँ जी अगर कोई पर्सन है, कोई लर्नर है, उसको बार बार ये बड़ा अच्छा है पढ़ने में, बार बार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके जैसा इस क्लास में कोई है ही नहीं है, मतलब नेगेटिव, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट कही जाना, ठीक है। अगर स्लो लर्नर्स उनको बार बार स्लो लर्नर्स कही जाना, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये एम्पैथी के अपोजिट हैं। तो क्या है, सब स्टूडेंट्स को इक्वल फीलिंग से, इक्वल जो है ट्रीटमेंट देकर जो है अनकंडीशनल
जो है अप्रोच लेकर जो है वो टीचर को चलना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स इक्वल लेवल के हैं। अगर कोई स्लो लर्नर्स भी हैं तो मैंने क्या उनका भी ध्यान रखिए क्लास में, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उनका भी ध्यान रखिए। सबका अपना अपना लेवल है, सबके लेवल को ध्यान में रखकर जो है टीचर को जिस पेस से जाना है टीचिंग में, किस पेस की टीचिंग करानी है, किस स्पीड की टीचिंग करानी है, वो सारे सब स्टूडेंट्स को जो है लर्नर्स के लेवल पे जाके वो कराए। ठीक है जी। और यूज़ ऑफ, लास्ट लाइन देखिए, यूज़ ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज जस्ट एज आर क्लास, वी मस्ट डू इट, मतलब एक सेंस ऑफ जो है वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करो, दिस इज़ आर क्लास, दिस इज़, है ना, वी मस्ट डू दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ क्या यूज़ ना करो, यू एंड योर क्लास। ये क्या है, ये एम्पैथी के अगेंस्ट हो जाता है। टीम स्पिरिट डेवलप करें, फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप करें, और अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम का मजाक ना उड़ाएं। उसकी प्रॉब्लम जो है, इवन कि अगर क्लास में बार बार पूछने से भी सॉल्व नहीं हो रही तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देके उसको क्लास के बाहर जाके भी समझा सकते हैं, अपने स्टाफ रूम में जाके समझा सकते हैं कि कई बार कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्रिसिएशन एंड पेशेंस। ये भी क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट मीन्स लर्नर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी चीज़ कोई लर्नर बोलता है, चाहे वो कैसे भी बोलता है, ठीक है जी, कैसा भी रिस्पॉन्स आता है, हर रिस्पॉन्स को अप्रिशिएट करिए, हर चीज़ को, हर रिस्पॉन्स को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। और अगर आपको एक स्टूडेंट बार बार सेम क्वेश्चन भी पूछ रहा है, उसको नहीं क्लियर हो रहा, तो आप पेशेंस रखें। पेशेंस इज़ पेशेंस शुड बी द बेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एक बेस, अगर टीचर ही अपना पेशेंस लूज कर लेगा तो स्टूडेंट्स को कुछ भी, वो खुद अपना, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी संभाल नहीं पाएगा, बार बार इरिटेट होगा कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हो। पेशेंस से कोई भी सिचुएशन क्लास में अराइज होती है, अगर सपोज दो स्टूडेंट्स आपस में लड़ पड़ते हैं या उनकी कोई आपस की बात हो जाती है, उसको भी पेशेंस से सुलझाएं। किसी के बीच में कोई पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सुलझाएं। अगर कोई स्टूडेंट आपको बार बार क्वेरीज दे रहा है, कुछ बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इरिटेट मत हो। ये पेशेंस और एप्रिसिएशन जो है, ये दो की वर्ड्स हैं स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करने के लिए। और स्टूडेंट क्या करता है, 4 तरह के लर्निंग मोड से जो है स्टूडेंट प्रेफर करता है लर्निंग। एक तो विजुअल, जहाँ पे स्टूडेंट्स की सेंसरी ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व हों, जैसे कि विजुअल, वो देख रहा है, जो भी देख रहा है उसको ज़्यादा ग्रैस्प करेगा। ऑडिटोरी मतलब जो सुन रहा है अच्छे से, उसकी कंसंट्रेशन से उसको सुनाएं, जो अभी आप लेक्चर बता रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसको कंसंट्रेशन लेवल जो है उसका इंटरेस्ट बिल्डअप करें, ताकि वो कंसंट्रेशन से जो है उसको जो है सुने एज अ ऑडियंस। फिर क्या है, रीड राइट की कैपेबिलिटीज़ उसमें इन्हांस करें स्टूडेंट्स में। काइनेस्थेटिक, एक काइनेस्थेटिक का मतलब होता है यहाँ पे बॉडी, मींस हैंड्स ऑन वर्किंग, मतलब जो भी आप सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को, उसके बाद क्या करो, स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करो कि अब मैंने आपको सिखाया, अब आप करके बताओ। ये क्या है, आप बॉडीली मूवमेंट्स जो हैं उसमें स्टूडेंट्स खुद करके देख रहे हैं, वो कंसेप्ट अपने आप जो है सॉल्व करके देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, इवन कि कुछ आप बना के देख रहे हैं कोई मॉडल। तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडीली मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स है जो स्टूडेंट्स जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। उससे क्या है, लर्निंग बिल्कुल हाई लेवल की हो जाएगी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे अब यहाँ तक हमने बहुत कुछ कर लिया, और नेक्स्ट हम करते हैं टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब ये बहुत ही एक माइनर सा टॉपिक है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन कौन सी आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आजकल तो सिर्फ बोल के लेक्चर मेथड तो वैसे भी ओल्ड वन हो गया कि हाँ जी बस लेक्चर दिया और चला गया, नहीं। तो क्या है, 8 तरह के क्लासरूम में टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें टीचिंग लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ये सबको पता ही है कि आजकल क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले ऑनलाइन लर्निंग ब्लेंडेड क्लासरूम चल रहे हैं, कि मतलब ऑनलाइन बोथ जो है, ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस एजुकेशन जो है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड प्लस ऑनलाइन मोड, ये दोनों इकट्ठे ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो करा रहे हैं। कई बार ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग दोनों ब्लेंडेड हो जाते हैं, तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। फिर क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, जो भी सपोज़ आपने कोई प्रोजेक्ट दिया तो उसकी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढें। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में, स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना के लेके आइए। नेक्स्ट क्या है, गेम बेस्ड लर्निंग एंड असेसमेंट। यहाँ पे क्या है, आप स्टूडेंट्स को कुछ भी सिखा रहे हैं, साथ साथ में क्या है, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करके सिमुलेशंस में या फिर गेम, मतलब कुछ भी सिखा रहे हैं गेमिंग वे से, उनकी इन्वॉल्वमेंट करके उनको जो है
बज़ क्रिएट करके कि हाँ जी, सिमुलेशंस का मतलब होता है कि आप जो भी सिखा रहे हो उनका उसका वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके सिखाओ। फॉर एग्जांपल अब लैब है, ठीक है जी, लैब में लेके जाते हैं, आप लैब में साथ साथ में बोलें, साथ साथ में उनको बोलें कि जो मैं बोल रही हूँ आप उसको करें अपने हाथों से, ठीक है जी। लैब में जाके वो जो है जो सोल्यूशंस बनाने हैं या कुछ भी बनाना है वो बनाएं। तो ये क्या है, ये सिमुलेशंस हैं, ये गेम बेस्ड लर्निंग। कई बार हम गेम गेम में सिखा देते हैं, कई बार इंटरेस्टिंग कोई बहुत मोनोटनस वाला टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बना के गेम वाइज सिखा देते हैं। तो ये क्या है, ये 8 वेज हैं जो हैं आजकल चल रहे हैं टीचिंग लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए। फिर क्या है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स आ गए हैं, स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकते हो, रियल टाइम जो है वीडियोस डाउनलोड करके उनको दिखा सकते हो, ठीक है जी। ऑनलाइन मैप है, कुछ भी आप जो भी आप ऑनलाइन या कुछ भी आप प्रोजेक्टर्स के थ्रू या किसी भी स्क्रीन के थ्रू दिखा सकते हो, तो ये आप दिखाइए। ये भी एक टूल है, इंटरेक्टिव टूल है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा ये 4 हमने कर लिए, अब 5th में चलते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड मीडिया लाइक पॉडकास्ट, वीडियोस, स्लाइड शोज़। ये तो आपको पता ही है, स्लाइड शेयर या स्लाइड शोज़, पॉडकास्ट, वीडियोस, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हो गए, ऑडियो लेक्चर्स हो गए, वो सारे इसमें आ गए, ठीक है जी। गूगल पे जो है वो कोलैबोरेटिव टूल जैसे गूगल है, वाईफाईज हैं, उनके थ्रू हमने पढ़ा दिया। सोशल मीडिया जो है वो यूज़ कर, जैसे हम सोशल मीडिया का जैसे फॉर एग्जांपल हम कराते हैं ना कि हाँ जी चलो आज गूगल मीट ऐप से कराते हैं, आज जूम ऐप से। आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस के थ्रू जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लर्निंग हो रही है, ठीक है जी। क्योंकि मैनुअल क्लासेस तो लग नहीं रही, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। तो आजकल का सिनेरियो जो है वो आपको बता रहा है कि कौन कौन से, और इवन कि नए नए जो है वो इंटरेक्टिव सेशंस शुरू हो गए हैं जिनका हमें पहले नहीं पता था। तो ये सारी क्या टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, ठीक है जी। फिर क्या आ गया, फ्रेमवर्क फॉर द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। 8th नंबर पे SAMR आ गए, TPACK आ गए। ये सारे मॉडल्स हैं जो हम टेक्नोलॉजी जो है वो उसको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सारी तरह के 8 मैंने आपको डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी या टूल्स जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैंने आपको बता दिए। ये 8 तरह के हैं। पेपर में ये इसमें से इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, 2 नहीं आते तो एक तो पक्का ही है, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ये आज की जो प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लासरूम में इफ़ेक्टिव क्लासरूम को हिंडर क्या क्या चीज़ें करती हैं, देखिए। अगर लिसनिंग नहीं है अच्छी लिसनर्स की तो उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारा काम है, टीचर्स का काम है। पुअर लिसनिंग जो है हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है जी। डिफरेंट परसेप्शन, जो डिफरेंट लर्नर्स की डिफरेंट परसेप्शन हो सकती हैं। एक मैसेज एक टीचर डिलीवर कर रहा है, उसको हर एक जो पर्सन डिफरेंट वे से समझता है, तो सबका जो है कंटेक्स्ट जो है समझने का सेम होना चाहिए, बिकॉज कंटेंट तो सेम ही होता है। तो उसका जो कंटेंट का कंटेक्स्ट किस बारे में बात हो रही है वो कंटेक्स्ट भी क्लियर हो, ठीक है जी। कंसेप्ट क्लैरिटी हो। तो लैंग्वेज जो है वो भी बैरियर हो सकती है, लैंग्वेज को सिंपल रखें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, कम्प्लेक्स वर्ड्स ना यूज़ करें। और क्लास में कभी भी कल्चरल डिफरेंस के ऊपर जो है, अब देखिए सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं लर्नर्स, कोई मराठी हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई किसी है ना। तो एक क्लास में अलग अलग कल्चर्स के लर्नर्स होते हैं, तो कभी किसी को डिग्रेड ना करें। सब कल्चर्स को एक अच्छा सा जो कल्चरल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करके, क्लासरूम हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप पढ़ाएं, वो बैरियर नहीं क्रिएट होगा। फिर एंजाइटी को जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होता है, कई बार हम बोर फील करते हैं, स्टूडेंट्स बोर फील करते हैं, कई बार वो एग्रेशन में आ जाते हैं, कई बार क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं स्टूडेंट्स के। तो मूड स्विंग को भी हमने टैकल करना है, मैनेज करना है, काउंटर करना है मूड स्विंग्स को भी, नहीं तो वो बैरियर जो है लग जाते हैं क्लासरूम में भी। मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल इश्यूज़, जैसे कोई एग्जांपल, अब यहाँ पे अब कोई मेडिकली ठीक नहीं है लर्नर, ठीक है, स्टूडेंट्स वो फिजियोलॉजिकली ठीक नहीं है, तो उसको पहले ठीक करें, उसके बाद ही वो पढ़ा। अगर कोई लर्नर जो है वो हेडेक हो रही है उसको, तो आप पढ़ाते जा रहे हैं, तो हेडेक में वो कितना पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा ना इफेक्टिवली। तो उसको पहले आप हेडेक की टैबलेट दें, उसके बाद पढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। पुअर चैनल्स हैं, जो आपने मीडियम चूज़ किया पढ़ाने का, वो अगर आपने गलत चूज़ कर दिया तो वो भी है, बैरियर का जो है वो कारण बन सकता है। जंबल्ड मैसेजेस जो हैं, मतलब आप जंबल्ड वे में मैसेजेस ना दें, कोई कंटेंट ना पढ़ाएं, एक क्रोनॉलजिकल ऑर्डर में जो है वो यूज़ करें, जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ाएं, ठीक है। इमोशनल स्टेट जो है वही फिर से आ गया, मूड स्विंग्स है, एंजाइटी है, ये सब जो है वो स्टूडेंट्स के काउंटर करने के बाद, मैनेज करने के बाद फिर से आप पढ़ाएं। क्रेडिबिलिटी जो है, अगर आप लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी कैन ऑल्सो बी अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर स्टूडेंट जो है, आप टीचर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सेज को वैल्यू ना करें,
ठीक है जी। क्रेडिबिलिटी मीन्स उनको उनको स्टूडेंट्स को वर्दी समझे ही ना, उनके रिस्पॉन्सेज को वर्दी समझे ही ना, वैल्यूएबल समझे ही ना, उनको इग्नोर कर दें, तो फिर लर्नर्स क्या है वो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आज की पूरी प्रेजेंटेशन का जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका एक कंक्लूजन निकल करके आता है दैट इट इंक्लूड्स द थिंकिंग, फीलिंग्स, कमिटमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स within the classroom or learning situation, as well as the interaction patterns and descriptions of learning environment that results from those interactions। क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन? ये प्रॉपर जो है ये एक 2-वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स जो हैं टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके कोलैबोरेटिव वे में, इंटरेक्टिव वे में जो है वो लर्निंग करते हैं, और क्या है एक अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो डेवलप करते हैं। इफ़ेक्टिव, अगर क्लास में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो कभी भी इफ़ेक्टिव वे से लर्निंग भी नहीं हो पाएगी, इफ़ेक्टिव वे से टीचिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। सो लास्ट में क्या है, एक टीचर को, मैं लास्ट में फिर बता रही हूँ, एक टीचर को 4 तरह की स्किल्स जो हैं अपने में, हर टीचर में ये 4 तरह की स्किल्स होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आया था इसलिए मैंने इसको लास्ट में ये स्लाइड दिखाई आपको। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक टीचर में क्या 4 तरह की बेसिक जो स्किल्स होनी चाहिए हर एक टीचर में। लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, मीन्स वर्बली वो बिल्कुल साउंड हो, ठीक है जी। बॉडी लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल लैंग्वेज उसकी बिल्कुल हेल्दी हो, ठीक है जी। टीचिंग स्किल्स में क्या क्या आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या कर रहे हो कि आपकी जैसे अब आप यू आर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आप इंटरेस्ट लेवल क्रिएट करके उसके बाद पढ़ा रहे हो, ये आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को नो योर स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका लेवल जानिए, उनका इंटरेस्ट लेवल जानिए, ठीक है जी। उनकी लिसनिंग स्किल्स को पहचाने, उनकी ग्रैस्पिंग पावर को पहचाने, ठीक है जी। अपने जो भी आपने आइडियाज़ या आपने जो भी पढ़ाना है उसको क्लियरली एंड लूसिडली पढ़ाएं, ठीक है जी। और अपना जो है आपकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, आपने जो भी एड्स यूज़ करनी है, ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, सब टीचिंग स्किल्स में, ये सारी टीचिंग स्किल्स हैं कि आपने स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना, कि स्कूल में आके जो है उनकी जो अनकंफर्टेबल जोन नहीं हो, जो है वो स्कूल में आके भी वो उनको घर जैसा माहौल ही और बिल्कुल विदाउट हेजिटेंट माहौल जो है वो फील होना चाहिए, तभी वो जो है हेल्दी वे में पढ़ेंगे। टीचिंग स्किल्स है आपकी। इंटरेक्शन स्किल्स कौन सी हैं कि आप क्या है आपकी जो आप स्टूडेंट्स को, आपकी इंटरेक्टिव स्किल्स में आ जाता है कि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हो आप पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। उनके आंसर्स को, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, उनके क्वेश्चंस को अप्रिशिएट कर रहे हो, उनके बैड और वेग क्वेश्चंस को डिस्करेज नहीं कर रहे आप, उनको प्रॉपर यू आर फॉलोइंग अप योर स्टूडेंट्स प्रॉपरली, आप उनको फॉलो अप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। उनको इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़, आप उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मौका दे रहे हो क्लास में, ठीक है। उनके रिस्पॉन्सेज को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ठीक है जी। अच्छे से जो भी आपने पढ़ाया उसको रिकैप्चुलेट कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चनिंग का आंसर दे रहे हो, टीम स्पिरिट बिल्ड कर रहे हो, पार्टिसिपेशन की जो सेंस है उसको बिल्ड कर रहे हो, ये सारा आपका इंटरेक्टिव स्किल्स में आ जाता है। तो ये 4 तरह की जो स्किल्स हैं वो टीचर में 100% जो है वो सक्सेसफुल टीचर में होनी चाहिए। तो आज के लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको रियली लगता हो कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की है, बिकॉज मैंने सारा कुछ कवर कर लिया क्लासरूम कम्युनिकेशन में, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि हम और इनकरेज हों नई नई वीडियोस लॉन्च करने के लिए, बिकॉज हम आपको 100% कंप्लीट कोचिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कोई आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें आपकी क्या चाहिए, सिर्फ आपकी मोटिवेशन चाहिए, आपकी लाइकिंग्स ऑफ द वीडियो चाहिए। आप वीडियोस को लाइक करें ताकि हमें आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिलते रहें पॉजिटिव, और हम आगे आगे पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्सेज लेके मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लॉन्च कर सकें, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, ठीक है जी। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू more and more aspirants all over India. So bye for now and stay tuned for the next video. God bless you all.